two types of closest packing. Hello. Hexagonal closest packing and cubic closest packing. Correct? So closest packing कब होगी? When we have constituents of same radius. Means we have solids whose constituents are atoms. Or what will be our example? देखो, solids generally we can classify of four types. Crystalline solid we can classify of four types. What are those four types of solids? What are various types of crystalline solids? First are covalent crystalline solids. Second are ionic crystalline solids. Third are metallic crystalline solid, and fourth are molecular crystalline solids. Correct? Covalent crystalline solid का example diamond. Sir, हाँ. so rather than sir, can you please repeat from the start, sir? This So is actually the volume was This is just the start. Acha, okay sir. Okay. We are discussing what are various types of crystalline solids. So I told four types of crystalline solids: covalent, ionic, metallic, and molecular. Example of covalent solid we can see is diamond. Ionic solid, typical example NaCl. Metallic solid, copper. Molecular solid, ice or sugar. Correct? The classification is simply based on the forces which are attracting various constituents. In covalent solids, it is covalent bond. Ionic solids, ionic bond. Metallic solid, metallic bond. Molecular solid, van der Waals forces. तो covalent solid जब बन रहा है, the constituent here are atoms. तो सब एटम सेम ही रेडियस के होंगे. तो कोवेलेंट सॉलिड्स जब बनेंगे तो which type of structure they will take? They will most prefer to take a close packing. Correct? Similarly in metallic solids. In metallic solids the constituents are metal cations and they all will be of same radius. But if we discuss of ionic solids, in ionic solids we have two types of radiuses. There are two types of constituents, cation and anion. Correct? One of them will be bigger, one of them will be smaller. Correct? तो अब ionic solids में क्या होता है? Let's begin with ionic solids. In ionic solids, the bigger ion makes the lattice, and the smaller ion, bigger ion makes the lattice and the smaller ion occupies some voids of the lattice. तो आप समझे स्ट्रक्चर क्या होगा. तो जो भी बड़ा आयन है वो लैटिस बना लेगा. उस लैटिस में कुछ वॉइड्स होंगे, उन वॉइड्स में वो छोटा आयन प्रेजेंट होगा. करेक्ट? क्या? कई तरीके के वॉइड्स है ना. जिस वॉइड में वो फिट होगा वही वॉइड ऑक्यूपाई करेगा. ओके. सो नाउ generally we know anion is always the bigger ion and cation is the smaller ion. Correct? यार देखो जो लैटिस बना रहा है वो ऑब्वियसली डोमिनेंट वाली चीज होगी. मतलब बड़ा आयन को अरेंज करना छोटे के बीच इज अ मच मोर डिफिकल्ट प्रोसेस देन अरेंजिंग अ स्मॉलर थिंग बिटवीन बिगर. जस्ट थिंक लाइक दिस. I can give you a simple analogy which is very relevant to our ionic solid packings. Let's say we have musk melons. देखा है खरबूजा, musk melon.
अब I Yes, sir. have 100 muskmelon and 100 grapes और उनको रखना है, तो मस्कमेलन रख देंगे, उनके बीच ग्रेप्स कहीं भी डाल सकते हैं। अब ग्रेप्स रख के उसके बीच मस्कमेलन डालने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी, समझे? Okay, sir, understood. करेक्ट। तो Yes. now the bigger ion will make the lattice, smaller ion will occupy some void. And as he asked just now, which void will be occupied? बहुत टाइप के voids हैं, and that decision will only be taken by, who will take that decision? Smaller ions. It will be taken by the relative size. It will be taken by cation का radius कितना है, anion का radius कितना है, and that we call as radius ratio rule. So let's see according to relative radius, which ion will occupy what void. So let me start with the first type of void which we can occupy. क्या किया था लास्ट क्लास में, कौन कौन से voids देखे थे? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और कोई void? एक और डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ट्रायंगुलर, जो पहले लेयर में था। तो लेट मी स्टार्ट विद द ट्रायंगुलर void. कैसे बनता था ट्रायंगुलर void? This is a triangular void. इन तीन ब्लू एटम्स के बीच जो स्पेस खाली है, that is a triangular void. So let's say these three blue things are three anions, correct? And cation has to occupy the triangular void. I can have three situations in this. Let me make slightly bigger. Correct? This is a triangular void. I can have three situations here. So between these three anions, there is a cation. One situation can be this. तीन anions है, उनके बीच एक cation. Second situation can be this. Correct? Third situation can be कैटायन की साइज वॉइड से छोटी है, कैटायन की साइज जस्ट वॉइड में फिट हो रही है, कैटायन की साइज वॉइड से बड़ी है. These can be three possibilities if cation has to go in a triangular void. Which situation in these three is most stable, most preferable? Second. And least stable? Third. Why? See, please understand. We are talking of ions. Correct? The most stable situation in these three is the third one. सेम चार्ज वाली चीजें एक दूसरे से दूर है. These are anions. They are repelling each other. Correct? Least stable situation is second one. Okay? And first situation is unstable. ये तो कभी अकर ही नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ रिपल्शन अट्रैक्शन से ज्यादा है. सेम चार्ज वाली चीजों को कांटेक्ट में कर रखा है, ऑपोजिट चार्ज वाली चीजें कांटेक्ट में नहीं है. करेक्ट? यहाँ सेम चार्ज वाले कांटेक्ट में, ऑपोजिट चार्ज वाले भी कांटेक्ट में. जस्ट यहाँ से आप बात शुरू कर सकते हो. दिस इज जस्ट बैलेंसिंग.
यहाँ ऑपोजिट चार्ज वाले कांटेक्ट में सेम चार्ज वाले कांटेक्ट में नहीं है, तो ये here definitely attraction is more than repulsion. So if a cation has to go in a triangular void, this should be its minimum radius. इससे छोटा cation हुआ, it cannot go in a triangular void. Is this statement clear to everybody? तो रेडियस रेशियो रूल में सबसे पहली चीज लिखेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड में अभी नहीं जाएंगे. First write the main statement of radius ratio rule, which says that for ion to go in any void, for ion to go in any void, the minimum radius ratio should be, for a ion to go in a void, the minimum radius ratio should be such that there is minimum radius ratio should be such that there is cation anion contact. There is cation anion contact along with anion contact. Along with anion contact. This statement I have given assuming anion is the bigger ion and cation is the smaller ion. अगर cation is the bigger ion and anion is the smaller ion, तो बस क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, cation anion contact along with cation contact. करेक्ट? तो अब निकालना शुरू करते हैं सारे रेडियस रेशियोज. So once we get our clarity, Sir, हाँ, sir, if we have size of cation equal to size of anion, then तब तो क्लोजेस्ट पैकिंग हो गया. जब सेम साइज के आयंस हो गए तो फिर कोई किसी के वॉइड में नहीं जाएगा. विल कम टू दैट रेडियस आल्सो. तो लेट मी स्टार्ट विद अ ट्रायंगुलर. जस्ट अभी थोड़ा सा देख लो फिर क्वेश्चंस पूछना. Okay, sir. So let's say these are 3 anions और कैटायन कहाँ होना है मिनिमम के लिए, कांटेक्ट. तो ये कैटायन है. तो लेट्स अप्लाई सम trigonometry to get this radius ratio. This will be an equilateral triangle. If the side of triangle is A, so what will be A equal to? 2 times radius of anion. Correct? And how much will be this distance from a corner to centroid of equilateral triangle? A by root 3. So A by root 3 will be radius of cation plus radius of anion. Yeah? 3. A by root 3. तो इसको भी यहाँ से if I bring this 2 here, तो A by 2 is radius of anion. Divide this second equation by first, तो क्या मिल जाएगा? 2 by root 3 is equal to 1 plus radius of cation by anion. तो इस सिचुएशन में रेडियस ऑफ cation by anion कितना मिल गया? 2 by root 3 minus 1, which comes out around 155. Correct? So if cation has to go in a triangular void, उसका रेडियस should be at least 0.155 times radius of anion or greater. तो 0.155 से ग्रेटर जब होगा रेडियस रेशियो, then the cation will go in a triangular void. Correct?
0 से 0.155 के बीच होगा, till then it will not go in a triangular void. So it can go in a triangular void only if radius ratio increases more than 0.155. ठीक है, कितना क्लियर है? एक और चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं, then we will see further. What was our next void? Tetrahedral void, 4 atoms. अच्छा, अगर कैटायन ट्रायंगुलर वॉइड में गया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 हमेशा 3 से ऊपर हो ही नहीं सकता ट्रायंगुलर वॉइड, तो वॉइड ही बदल जाएगा। अगर ऊपर आ गया तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। वो ट्रायंगुलर वॉइड कैन ओनली अकर इन अ प्लेन। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता था, याद है? शेप कैसे बनाया था टेट्राहेड्रल वॉइड? ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर ट्रायंगुलर वॉइड के ठीक ऊपर एक एटम रख के, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था एफसीसी में कहा होता था टेट्राहेड्रल वॉइड, बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब में कट कर दो और हर क्यूब का बॉडी सेंटर एक टेट्राहेड्रल वॉइड था। तो लेट्स से वो एक ये छोटा वाला क्यूब है, तो इसमें कैटायंस और एनायंस कहाँ कहाँ होंगे? एनायंस, ये 4 एनायंस होंगे, टेट्राहेड्रल बना रहे हैं ना ये, और कैटायन कहाँ होगा फिर? बॉडी सेंटर में, करेक्ट? मिनिमम रेडियस रेशियो के लिए क्या चाहिए? एनायन एनायन कांटेक्ट, एनायन एनायन कांटेक्ट along with एनायन कैटायन कांटेक्ट, करेक्ट? तो अगर इस क्यूब की एज लेंथ a है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √2a, and √2a will be twice of radius of anion. तो √2a will be 2 times radius of anion. और ये डिस्टेंस कितना होगा? √3a by 2. √3a by 2 will be radius of cation plus, तो इस 2 को यहाँ ले आते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो what we will get 1 plus radius of cation by radius of anion is equal to √3 by √2. तो radius of cation by radius of anion will be √3 minus √2 minus 1, which comes out to be approximately 0.225. ठीक है? तो जब 0.225 से ऊपर हो जाएगा, after that cation will start entering a tetrahedral bond, where it will get a coordination number of 4. So now we come to a very simple question. Suppose in any ionic solid radius ratio is 0.3, then will cation go in a triangular void or will it go in a tetrahedral? Why? Tetrahedral. Why? Reason? भाई जितना बड़ा होता जा रहा है ट्रायंगुलर वॉइड में सेपरेशन उतना बढ़ता जा रहा है एनायन एनायन का, तो बट एटम्स बड़े तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ी। हाँ, रिलेटिव रेडियस देखा। ट्रायंगुलर वॉइड के लिए आपने क्या कहा? ट्रायंगुलर वॉइड के लिए आपने कहा कि 0.155 से बड़ा होना चाहिए रेशियो, और टेट्राहेड्रल के लिए कहा 225 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0.3 दोनों नंबर से बड़ा है। जितना पॉजिटिव साइज बढ़ेगा सर उतना ट्रायंगुलर एटम्स Sir, with the Isaac Newton coordination. Ionic solid structure is only decided by coordination number. किसी भी आयनिक सॉलिड को अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमाइज करना है, भाई वही है स्टेबिलिटी। आयनिक सॉलिड में साइज, पैकिंग, डेंसिटी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आयनिक सॉलिड का गाइडिंग फोर्स है आयनिक बॉन्ड। जितने ज्यादा ऑपोजिट आयन सराउंड करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स मिलेंगे। तो
any ionic solid will always try to maximize its coordination. तो पॉइंट 3 पे उसको दोनों अवेलेबल है, ट्रायंगुलर वॉइड भी अवेलेबल है, टेट्राहेड्रल वॉइड भी अवेलेबल है, लेकिन ट्रायंगुलर वॉइड में उसको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 3 का और टेट्राहेड्रल वॉइड में उसको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 4 का. तो इट विल बी डेफिनेटली प्रेफरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड रादर देन ट्रायंगुलर वॉइड. सो देयरफॉर पॉइंट 225 के बाद ट्रायंगुलर वॉइड में लोग जाना बंद कर देंगे, because now the next door is open for them and they will start going in tetrahedral void with a coordination number of 4. अगर ये चार्ज Q है, दूसरा चार्ज माइनस Q, तो इसके फोर्स बीच फोर्स क्या होगा? KQ²/R पोटेंशियल एनर्जी, और 2 माइनस Q हो गया तो फोर्स पूरा ट्वाइस हो जाएगा ना. सर आपने बोला कि अगर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हुए तो फिर कटायन और अनायन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होगा. नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इंक्रीज, सर बट अनायन के बीच में भी तो रिपल्शन ज्यादा होगा. देखो तुम्हारा अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा है ना रिपल्शन से, तो इफ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्म्स अट्रैक्शन इज ऑलवेज मोर देन रिपल्शन, तो द नेट फोर्स विल डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज. What can be the next coordination number now? 6, which will occur in a octahedral void. Octahedral void last class में देखा था, if you remember SF6 को बनाया था, correct? So how we can denote that octahedral void in this cube? सारे फेस सेंटर्स पे एनायन है, करेक्ट, और अब जो बॉडी सेंटर बच रहा है दैट इज अ octahedral void, वहां पे कैटायन है. What will be the minimum radius ratio? Cation anion contact along with anion anion contact. तो अगर इस क्यूब की एज लेंथ a है तो दो फेस सेक्टर्स के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/√2. दिस विल बी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन, और ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2 विल बी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन. इसको यहाँ ले लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस रेडियस ऑफ कैटायन बाय एनायन विल बी √2. So radius of cation by anion 0.414. तो 0.414 के बाद क्या होगा? Cations will start going in a octahedral void to obtain a coordination number of 6. इससे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिल सकता है? 8. So 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले वॉइड को वी कॉल एज क्यूबिकल वॉइड. क्यूबिकल वॉइड कैसे बनेगा? सिंपल क्यूबिक लैटिस में एट ऑल 8 कॉर्नर्स वी हैव anion, करेक्ट. अब क्यूब के सेंटर के कितने नेबर्स हैं? 8. तो क्यूब के सेंटर पे वी हैव द कैटायन. Again for minimum radius ratio there should be cation anion contact along with anion anion contact. क्यूब की एज लेंथ a अगर मान लें तो a/2 इज रेडियस ऑफ एनायन एंड √3a/2 इज रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन. डिवाइडिंग 1 प्लस रेडियस ऑफ कैटायन बाय एनायन विल बी √3.
और रेडियस ऑफ कैटायन बाय एनायन विल बी 0.732. तो 0.732 के रेडियस के बाद दे विल स्टार्ट गोइंग इन अ cubical void to obtain a coordination So- number of 8. हाँ. सर वो आपने एकदम बिगिनिंग में you said that there are 3 types of word, मतलब उसमें से you said right now we are finding the smallest radius वाले, so the other ones can't be find और उसका खाली हम range बोल सकते कि ये value और ये value के बीच में होगा. No, I didn't get you. In the So in starting the of class I beginning said कि in last class we studied 3 types of words. Yes sir. हाँ, तो वो 3 words थे triangular, तो उसमें सर आपने वो octahedral. कैटायन को आपने 3 वे में 3 तरीके में वो नहीं थे यार, हमने कहा था हाँ. हर void. Listen, I started the discussion of triangular void and then I said कि उसमें 3 situations हो सकती हैं कि कैटायन का साइज void से छोटा है, void के बराबर है, void से बड़ा है. And hence we proved कि जब कैटायन का साइज ठीक void के बराबर होता है वो मिनिमम रेडियस होता है. And that we are applying now to all types of voids. तो सर उसमें पूछा था कि जो बाकी के 2 टाइप्स में थे उसका हम रेडियस फाइंड नहीं कर सकते ना, मतलब स्पेसिफिक रेडियस कि ये रेडियस पे ऐसा ये दो जाएगा. कौन से टाइप के हैं? मतलब वो जिसमें कैटायन का साइज बड़ा था. कैटायन का साइज बड़ा है तभी तो ये रेंज आ रही है ना. 0.155 पे वो जस्ट रेंज कांटेक्ट आएगा है सर. यार. ये मिनिमम है. ये हो सकता है यहाँ से शुरू होगा, ये भी हो सकता है. करेक्ट. तो 0.155 से ट्रायंगुलर वॉइड शुरू होगा, उससे रेडियस बढ़ता जा रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड होता रहेगा अप टिल 225. 225 के बाद एक नया वॉइड ज्यादा स्टेबल हो गया, वहां जाना शुरू कर देंगे कैटायन. हाँ सर. तो वो पूछ रहा था सेकंड जो डायग्राम बना है उसके लिए स्पेसिफिक रेडियस नहीं है ना, कि उसके लिए रेंज ही है 0.155 से 0.225. कौन सा? ये इज एनीवेयर बिटवीन दिस. तुम किस सिर्फ मिनिमम निकाल सकते हो ना. ओके. तो ये कहां तक जाएगा? 0.732 से 0.999. करेक्ट. द मोमेंट रेडियस रेशियो बिकम्स 1. Now cation and anion are of equal size. So nobody will go into void of anybody else. Now both will make lattice together. मिल के लैटिस बनाएंगे. और जब सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेडियस सेम है तो किस टाइप की लैटिस बनती है? क्लोजेस्ट पैकिंग. तो इन दिस सिचुएशन either both of them together will make a hexagonal closest packing or a cubic closest packing. And in both of them, what is the coordination number we discussed in last class? 12. और अगर radius So can you have the same cation? So can you have the same cation in more than one void? Can? Can you have the same cation in more than one void? Yes, you can have. Okay, sir. And if the radius ratio is between 0 to 155, then it is a very simply linear arrangement of cation and anion. एक cation, एक anion, एक cation, एक anion like this, with a coordination number of 2. If radius ratio goes above 1, तब क्या होगा? यही लिस्ट होगी. नाउ वी विल कैलकुलेट रेडियस ऑफ एनायन टू कैटायन. करेक्ट. क्लियर है? तो बाय दिस Sir, हाँ, why don't we consider other coordination numbers? सिमेट्री नहीं मिलेगी ना किसी में. Five में नहीं है. 5 आ 7 सकती है, 5 7 9 इन सब में सिमेट्री नहीं है. आई कैन नॉट अरेंज अ 3D स्पेस विद अ सिमेट्रिकल 5 एटम डिस्ट्रीब्यूशन. जो नेचुरली मिल रही है चीजें, उन्हीं के बीच के वॉइड्स देखेंगे ना. Okay, sir. Sir, and in one, when
r plus upon r minus 1, then why will it form an HCP or a CCP? भाई closest Why should it packing be का closest? when you have atoms of same एक भी हो radius. सकते हैं जैसे नहीं, when you have atoms of same radius. Sorry, not atoms. When you have constituents of same radius, they will definitely try to arrange themselves in the best possible way. हाँ ओके तो बेस्ट अंडरस्टूड यार पॉसिबल वे पैकिंग से भी वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर से भी वही है. यस सर अंडरस्टूड हो गया, नोट कर लिया सब? नो सर जस्ट क्या? ये सब हमें मिले हैं ना, ये सब वॉइड्स हम लोगों ने जो पहले लैटिसेस के एग्जांपल किए, सब वॉइड्स देखे थे ना, करेक्ट? इसीलिए इसको फिर रिवर्स कर देना ना, 1 to infinity जाएगी, वो विल करस्पॉन्ड टू ये सो ये रेशियो निकाल लो ना, इसका उल्टा रेशियो. तब 1 से बड़ा मतलब कैटायन बड़ा है, एनायन छोटा है. देन यू शुड कैलकुलेट रेडियस ऑफ एनायन टू कैटायन. सर हां, सर हमने 14 लैटिसेस पढ़ी थी, उसके साथ जो और पॉइंट्स को रखते थे ना क्या वो देखो 14 लैटिसेस जो थी, दोज वर फॉर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. 4 तरीके के सॉलिड्स हैं, फिर से याद करते हैं. कोवेलेंट, आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर. जो पहले 14 लैटिसेस की थी, दोज वर 14 पॉसिबिलिटीज ऑफ अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. क्लोजेस्ट पैकिंग आर फॉर कोवेलेंट एंड metallic solids, and now we are doing for ionic solids. Clear? ओके सर यस सर अब जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर डाउट पूछो. ये रेडियस दिए 2 आयंस के. Who will make the lattice? B minus. In which void will A plus go? Octahedral. Correct? We have a alloy of iron and zinc. Radius of सर is is this ionic at all? no So metallic metallic solid भी नहीं है, alloy है. Submit. क्या होगा आंसर? सब में जाएगा सर, सब में जाएगा. सब में जाएगा. हाँ, can't be determined. ऑक्टाहेड्रल के सर हाँ. it can go Now listen, all of them. listen. 3 सिचुएशंस देखी थी ट्रायंगुलर वॉइड की. कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल थी? सॉरी, और ये मिनिमम थी, यहाँ से शुरू होता है. ये सिचुएशन हम लोग ने इसकी रीजनिंग क्या दी थी? रिपल्शन, बिकॉज दीज आर आयंस. Now start considering if these are atoms. तब ये ब्लू एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं. If all these 3 blue are atoms, not ions, and the red one is also a atom, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है. तो अब एक सॉलिड क्या करना चाहेगा? विदाउट आयंस वाला सॉलिड अपने आप को बेस्ट पैकिंग देना चाहेगा. उसके लिए गाइडिंग फोर्स होगी बेस्ट पैकिंग. तो ये उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये उसका मैक्सिमम होगा. इससे छोटा वाला ओके. तो जो आयनिक के लिए, आयनिक सॉलिड्स के लिए हमने रेडियस रेशियो निकाली है, या हर वॉइड का जो मिनिमम निकाला है, अगर एटम्स है कॉन्स्टिट्यूएंट, तब वो हर वॉइड का मैक्सिमम हो जाएगा. तो ट्रायंगुलर वॉइड के लिए जैसे आयनिक सॉलिड में 0.155 इज द मिनिमम रेडियस रेशियो फॉर अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स, दैट विल बिकम द मैक्सिमम रेडियस रेशियो.
तो उस सिचुएशन में 0 से 155 तक ट्रायंगुलर वॉइड, 155 से 225 तक टेट्राहेड्रल वॉइड, 225 से 414 तक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 414 से 999 तक, सॉरी 414 से 732 तक क्यूबिकल। करेक्ट, इसको भी नोट कर लो। तो दिस विल बी लिस्ट फॉर एटम्स, अगर एटम्स के बारे में तुमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया, करेक्ट। आयंस के बारे में पूछा है, यू विल गो बाय दिस लिस्ट। हाँ बोले। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं मेटल से। वो तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, सभी कैटायन है ना उसमें। यू विल बी आस्क्ड हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यूजिंग एटम्स, तब ये लिस्ट यूज करनी है, करेक्ट। So can you please repeat why you cancelled this structure? Why it won't be stable? बेमतलब की जगह कैसे छोड़ेंगे सॉलिड में? कोई रिपल्शन है इन ब्लू एटम्स के बीच? तब तो एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजेस्ट जितना आ सकते हैं तब वहां तक आएंगे ना। हाँ सर। सर 0.732 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? 732 से ज्यादा सिर्फ अब केस 1 का डिस्कस होगा। अगर रेडियस रेशियो 1 हुआ देन दे विल मेक अ क्लोजेस्ट पैकेज। मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एग्जिस्ट करेगा, इट विल गो इन द 14 ब्रेविस लैटिसेस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स लेने लग जाएगा। तब ऐसा नहीं होगा कोई एक लैटिस बना रहा है और दूसरा वॉइड में जा रहा है, उस तरह की सिचुएशंस नहीं आएंगी। और लीनियर नहीं होगा? लीनियर नहीं होता है इसमें। So, हाँ, so I don't understand why 0.155 will become the maximum radius ratio for tanks now. क्योंकि उससे बड़ा किया तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लैटिस बना रहे थे उनका कांटेक्ट छूटने लग जाएगा। And a solid, if I am making a solid lattice, I cannot leave spaces between constituents unless and until there is some repulsion between them. Ionic solids में there was repulsion. अगर atoms होंगे तो they are not going to repel each other. So how I can separate out those two atoms? We come to various structures of ionic solids. There are some typical type of structures in ionic solid. Sir, sir, I had doubt in the previous this question that zinc and Fe का जो था, sir उसमें जो second है, that is जो जब just fit होता है छोटा वाला atom, वो सबसे बेस्ट होना चाहिए ना? वो बेस्ट है ना, इसलिए तो उसको मैक्सिमम रेडियस बोला है। Okay sir, got it sir. Since solid sir. हाँ, Yes sir, got it sir. चलो सब लोग पहले ध्यान से टेबल देखेंगे। दिस इज द मतलब एंटायर क्रक्स ऑफ चैप्टर। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टेबल से रिलेटेड आने वाले। हाँ बोलो। क्लोजेस्ट पैकिंग चाहिए ना इसमें मेटालिक में, तो फिर वो जो रेडियस जब एग्जैक्टली इक्वल होता है उससे क्लोजेस्ट आने की क्यों नहीं? अगर एग्जैक्टली इक्वल है दोनों चीज का रेडियस तो क्लोजेस्ट ही बनाएगा ना वन पे। मतलब अगर ये टेट्राहेड्रल का 1.55 हाँ, तो 1.55 से थोड़ा कम होगा तो वो लीनियर सॉरी ट्रायंगुलर हो गया। हाँ ट्रायंगुलर में जाएगा ना उसी में। क्लोजेस्ट भाई बात क्लोजेस्ट पैकिंग तो वो बना रहे ना ब्लू वाले, नंबर से क्लोजेस्ट। रेड वाला तो सिर्फ वॉइड में जा रहा है, छोटी वाली चीज तो वॉइड में जा रही है ना। Sir, हाँ, so what will happen in anion bond, anion that is? what will happen मतलब
सर उसमें कैसे बनेगा? जैसे आपने जिंक और Fe लिया, वैसे अगर सल्फर और ये लिया, क्या बोलते हैं, कार्बन और सल्फर लिया तो अगर एटम्स ले रहे हो तो मैंने जिंक और आयरन लिखा था, उनके कैटायंस नहीं लिखे थे। ओके सर, मतलब वो हर एटम के लिए वो है। जब एटॉमिक स्टेट है तब उसके लिए। ओके सर, गॉट, थैंक यू सर। तो पहले ये 5 स्ट्रक्चर्स जरा समझते हैं। 5 कॉमन स्ट्रक्चर: रॉक सॉल्ट, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड। रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स इनके हैं। रॉक सॉल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम NaCl, सीजियम क्लोराइड तो itself, जिंक ब्लेंड ZnS, फ्लोराइड CaF2, एंटी फ्लोराइड Na2। These are the representative examples. Now, इन सारे स्ट्रक्चर्स में हमें याद क्या रखना है? What is the memory based part of this section? We will have to remember the location of cation and location of anion. Where is cation, where is anion? ये हम लोगों को याद रखना है। तो cation, anion, correct? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में एनायंस मेक अ FCC लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, एंड कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल octahedral voids of the lattice, correct? So that is the structure of a NaCl or rock salts type solid. In cesium chloride, anions make a simple cubic lattice and cations occupy cubical void. In zinc blende structure, anion makes a FCC lattice and cations occupy half of tetrahedral void. Every alternate tetrahedral void. In fluoride structure, थोड़ा difference है. In fluoride structure, the lattice is made by cation. Fluorine is a smaller anion. So lattice is made by cation, IFCC lattice, and anions occupy all of tetrahedral void. Anti-fluoride इसका ठीक उल्टा. Anions make a FCC lattice and cations occupy all of tetrahedral. Clear? अब इस स्टडी के साथ हम लोगों को और क्या क्या इस स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम होना चाहिए या और क्या क्या हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग इसमें अब एक निकाल सकते हैं, यूनिट सेल फॉर्मूला। Then we can say a simplest formula or empirical formula. Empirical formula. Then we can discuss of coordination number. Correct? And also we can discuss of packing fraction. सर सिर्फ हाफ ऑफ टीवी का मतलब बता दो ना। बता रहे ऐसे कौन से टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे हैं? अच्छा, एक चीज करेंगे, सेल पैरामीटर, पैकिंग फ्रैक्शन। तो नाउ प्लीज पे अटेंशन ऑन बोर्ड। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। Cations are in octahedral void, anions are in FCC lattice. तो एक यूनिट सेल में anions FCC बना रहे हैं। एक यूनिट सेल में कितने anions होंगे? क्या था Z इफेक्टिव FCC का? 4। तो मतलब एक यूनिट सेल में कितने anions होंगे? 4। और
एक यूनिट सेल में एफसीसी के कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते थे? 4। तो उन चारों में क्या प्रेजेंट है? कैटायन। तो ये कितने हैं? व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस सॉलिड? सॉरी, यूनिट सेल फार्मूला A4B4, एम्पिरिकल फार्मूला AB। ठीक है, क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने पड़ेंगे, एक कैटायन का और एक एनायन का। कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है कि एक कैटायन को कितने एनायन सराउंड कर रहे हैं, और एनायन का क्या मतलब है एक एनायन को कितने कैटायन सराउंड कर रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है? NaCl का एग्जाम्पल ले तो क्लोरीन की FCC है, क्लोराइड आयन की। मतलब अगर इस रूम को हम लोग एग्जाम्पल ले लें, इन द रूम विच वी आर सिटिंग, तो कहाँ कहाँ पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है? एट ऑल 8 कॉर्नर्स ऑफ द रूम एंड एट ऑल द फेस सेंटर्स ऑफ द रूम। करेक्ट? सारी वॉल्स के, चारों वॉल्स के सेंटर पे, फ्लोर की और सीलिंग की सेंटर पे, और 8 कॉर्नर पे, इन सब जगह पे है क्लोरीन। सोडियम कहाँ का है? बॉडी के सेंटर पे है सोडियम, और सारे एच सेंटर्स पे। करेक्ट? तो किसी भी सोडियम को कितने क्लोरीन सराउंड कर रहे हैं? 6। कोई भी सोडियम ले लो, बॉडी सेंटर वाला ले लो, उसको कौन कौन क्लोरीन नियरेस्ट नेबर्स है? 6 फेस सेंटर्स वाले। तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। अब एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है। किसी भी क्लोरीन को ले लो, लेट्स टेक अ फेस सेंटर क्लोरीन, उसके कितने नेबर्स हैं? 6। करेक्ट? x + x - x + y - y + z - z, हर एक में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6,6। क्लियर? सेल पैरामीटर क्या होता है? जो क्यूब की एज लेंथ है a, उसमें और रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन में एक रिलेशन। तो इसमें अभी क्लोरीन कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे, और एज सेंटर पे है सोडियम। तो एक पूरी एज की लेंथ क्या होगी? रेडियस ऑफ क्लोरीन प्लस डायामीटर ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो व्हाट इज द सेल पैरामीटर हियर? A is equal to twice of radius of cation plus radius of anion. Is this clear? ये चारों चीजें कैसे कैलकुलेट हुई है? सेल पैरामीटर सी अगेन। इफ यू सेल पैरामीटर में डाउट है तो ऐसा क्यूब है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है, और बीच में सोडियम आयन है। ये सब कांटेक्ट में होंगे, तो टोटल एज लेंथ ये कितनी हो गई? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन। हाँ बोल। So please could you repeat the unit cell formula? यूनिट सेल फॉर्मूला, हाँ यूनिट सेल फॉर्मूला फिर से देख लो। इस यूनिट सेल में 8 क्लोराइड आयन्स है एट कॉर्नर, 6 क्लोराइड आयन्स है सेंटर पे। इन 8 का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन 1, इन 6 का 1/2 3। टोटल क्लोराइड आयन हो गए 4। सोडियम आयन कहाँ है? एक है बॉडी सेंटर पे और 12 है एच सेंटर पे। बॉडी सेंटर वाले 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन 1, एच सेंटर वालों का 1/4। So total sodium ions are also 4. Sir, can you please explain the empirical? यार क्या बोल रहे हो? एम्पिरिकल फॉर्मूला है सिंपलेस्ट A4B4 का एम्पिरिकल फॉर्मूला ये भी होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। Okay. Okay. And so कोऑर्डिनेशन नंबर (6) में हाँ, which one is the anion and which one? पहला हमेशा कैटायन है। दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन द सेकंड टर्म। Sir, and the
meter, हाँ। is it for a cube? हाँ एक्सेप्ट क्यूबिक, ये सारी क्यूबिक लैटिसेस ही है ना, देख लो FCC या Yes, sir. सिंपल क्यूबिक. So for others we will have नहीं, to for others we will specify not. extra thing. नहीं, for others we will not study cell parameter. Okay. अच्छा, तो now first thing what you do, ये टेबल बना लो. पैकिंग फ्रैक्शन अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं. बाकी चारों पैकिंग के लिए ट्राई टू फिल दीज कॉलम्स ऑन योर ओन. करने की कोशिश करो जरा एक बार. Sir, could you please define the coordination number for cations and anions, please? कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? उसको कितने एनायंस ने सराउंड करके रखा है, और एनायन का क्या हो जाएगा कि उसको कितने कैटायन ने सराउंड करके रखा है. Okay, sir. चलो इस बार Thank you. इस पे थोड़ा सा सोचना शुरू करो, या टेबल भरो. हो गया फिर लिस्ट. सर वो हाफ ऑफ पीवी और एक बार एक्सप्लेन करोगे? हाफ ऑफ पीवी का मतलब, इफ यू रिमेम्बर एफसीसी के एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते थे? 8 पर यूनिट सेल. तो उन 8 में से 4 ऑक्यूपाई होंगे और 4 खाली छूट जाएंगे. तो 8 में से नहीं, ऑल्टरनेट, एवरीवेयर ऑल्टरनेट. ये ऑक्यूपाई हुआ, अगला नहीं होगा, फिर अगला होगा, फिर अगला नहीं होगा. लाइक दिस, ऑल्टरनेट इन ऑल डायरेक्शंस. सर आप एक बार बता दो डायग्राम. सर आप एक बार ड्रॉ करके बता ना ऑल्टरनेट कैसे है. यार ड्रॉ हो पाएगा क्या? तुम्हें लग रहा है 14 स्पेसेस दिख पाएंगी तुम्हें बोर्ड पे? Yes, I mean only the tetrahedral voids, not the other anions. तो 8 छोटे क्यूब में बांटा था, हर एक का बॉडी सेंटर था एक टेट्राहेड्रल वॉइड. तो अगर मान लो यहाँ वाला ऑक्यूपाई हुआ तो यहाँ वाले पे नहीं होगा, यहाँ वाले पे नहीं होगा, यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये वाला नहीं होगा. ऑल्टरनेट इन ऑल डायरेक्शंस. 4 जगह ऑक्यूपाई होगी, 4 जगह नहीं होगी. सर हाँ बोलो. सर आपको कटायन के 6 नेबर्स को बॉडी सेंटर पे समझा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. सो एज सेंटर्स पे मिड पॉइंट ऑफ एजेस पे जो होते हैं उसके लिए सर विजुअलाइज नहीं हो रहा है कि 6 नेबर्स कैसे होंगे. वो वाला डायग्राम लास्ट क्लास में ही बनाया था. ये कैटायन है तो इसके 6 नेबर्स कौन कौन से एनायंस हैं? एक ये, 2, 3, 4, एक इस क्यूब में इधर 5, एक ऊपर 6. ओके सर, थैंक यू सर. डायग्राम 6 नेबर्स हैं इसके. Okay. Let's start filling the remaining list. तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में सिंपल क्यूबिक एनायंस. सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? 8 कॉर्नर्स, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8. तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव एनायंस 1, और एक ही क्यूबिकल वॉइड होता है तो कैटायन भी 1. यूनिट सेल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला बोथ आर सेम. एफसी जिंक ब्लेंड में एनायंस की एफसीसी तो 4 एनायंस, हर यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे. उसके हाफ ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मतलब 4, A4 B4 AB. कैटायंस एफसीसी बना रहे हैं तो एक यूनिट सेल में 4 कैटायंस. एनायंस सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं. 8 टेट्राहेड्रल वॉइड B8 AB2. एंटी फ्लोराइड एग्जैक्टली रिवर्स, A8 B4
A2 कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं। ज़्यादा विजुलाइज करके सोचने से अच्छा तरीका। वॉइड में कौन जा रहा है? किस वॉइड में जा रहा है? क्यूबिकल। और क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी किया है, कितना होता है? 8। तो मतलब कैटायन का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, करेक्ट। और कैटायन और एनायन का रेशियो क्या है इस सॉलिड में? 1:1। कोऑर्डिनेशन नंबर का भी रेशियो 1:1 ही होना पड़ेगा। क्लियर भाई? जितने कैटायन है उतने एनायन है, तो जितने एनायंस एक कैटायन को सराउंड करेंगे उतने ही कैटायंस भी एक एनायन को सराउंड करेंगे। यार कौन है वॉइड में? Who is in void? कैटायन। किस वॉइड में? टीवी। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा उसे? 4। रेशियो 1:1। 4,4। यहाँ पे कौन है वॉइड में? एनायन। किस वॉइड में है? टेट्राहेड्रल। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। रेशियो क्या है? 1:2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। जो चीज ज्यादा है उसका खुद का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, वो दूसरे को ज्यादा कोऑर्डिनेट करेगा ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8,4। यहाँ पे 4,8। क्लियर? सेल पैरामीटर्स। सीजियम क्लोराइड में क्यूबिकल वॉइड में है, मतलब 8 कॉर्नर्स पे क्यूब के क्लोरीन है और क्यूब के सेंटर में सीजियम है। तो अब अगर बॉडी डायगोनल से देखें तो पूरा बॉडी डायगोनल में क्या क्या आएगा? एक कॉर्नर का क्लोरीन, फिर बॉडी सेंटर का सीजियम, फिर कॉर्नर का क्लोरीन। तो √3a विल बी इक्वल टू 2 times रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन। जिंक ब्लेंड कहाँ पे है? FCC है। और कैटायंस कहाँ पे है? बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब में काटा, उस क्यूब के एक बॉडी सेंटर पे, करेक्ट। तो छोटे क्यूब का कॉर्नर से उसके बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3a/4। तो √3a/4 will be radius of cation plus anion। और यही रहेगा इन तीनों में। क्लियर? सब में टेट्राहेड्रल वॉइड में है। दूसरी चीज क्लियर है? Sir, could you please repeat the cell parameter for zinc blend? ये था FCC वाला क्यूब, इसको 8 छोटे क्यूब में कट किया था। तो ये था छोटा वाला क्यूब, FCC बनाया है एनायन। तो यहाँ पे है एनायन और इस छोटे क्यूब के बॉडी सेंटर पे है कैटायन। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये बड़े क्यूब का के बॉडी डायगोनल का 1/4 होगा, and that will be radius of cation plus anion। जो ज्यादा होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा ना सर वो उसमें हाफ ऑफ टीवी है, बाकी सब में ऑल ऑफ टीवी है सर, तो वो सेम क्यों रहेगा सर पैरामीटर? भाई जो यहाँ देखो, सुनो, पूरे सिस्टम को सिमेट्रिक रहना है, तो क्यूब की अलग अलग एजेस बदल थोड़ी नहीं सकती हैं। यहाँ पे एटम है और इसके ऊपर वाले में नहीं है, लेकिन इन दोनों क्यूब्स की साइज को तो सेम ही रहना पड़ेगा ना, वहां उतना खाली जगह छूटी होगी। हाँ सर समझ गए।
सर वो फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर का वापस बताइए। भाई Chloride void में का कौन है? coordination है। void में कौन है? anion, करेक्ट? यस। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। एनायन कैटायन ये किस टाइप का सॉलिड है? Ab2, मतलब इनके नंबर्स का रेशियो क्या है? 1:2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर्स का रेशियो 2:1 होगा। तो इसका अगर 4 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। सर वो 2:1 क्यों होगा? ये समझो इस तरीके से, you have, let's say, चलो ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम बुकलेट्स लाए हो आज? नहीं, लेट हिम आंसर। यस सर। हाँ, कितनी बुकलेट्स लाए हो? एक। और रजिस्टर नोटबुक्स कितनी लाए हो? 2। तो रजिस्टर बुकलेट और नोटबुक्स का रेशियो आज तुम्हारे पास है 1:2, करेक्ट? यस। So now if I ask you per booklet how many notebooks you have bought? 2. तो बुकलेट का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2, because one booklet has 2 notebooks for it. Clear? यस। And notebooks का रेशियो क्या हुआ? Per notebook has half booklet for it. हाँ यस सर। Got it? तो जो चीज ज्यादा होगी, जो खुद बहुत ज्यादा है, मतलब वो दूसरे को बहुत ज्यादा सराउंड करेगी। तो जो चीज खुद ज्यादा है वो दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा करेगी और अपना कम करेगा। In one unit cell, Yes, sir. I have 4 anions and 8 cations. Sorry, 4 cations and 8 anions. Yeah? यस। When they are in ratio of 1:2, their coordination number will be in exactly reverse ratio. ओके सर, गॉट इट। Okay, got it? हाँ, तो अभी जब 2-4 और Yes, sir. structure, less common structures also let's write. So one of them is rutile, TiO2, representative example. Corundum structure Al2O3. In rutile structure and corundum structures, anions make a hexagonal closest packet. Cations here occupy half of octahedral voids, and here they occupy 2/3 of octahedral voids. Unit cell formula, HCP का Z effective was 6. Anions बना रहे हैं तो B6, और एक यूनिट सेल में देयर वर 6 octahedral voids, हाफ उसके ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो A3, B6, AB2, कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड में कौन जा रहा है? कैटायन, तो उसका, और किस वॉइड में जा रहा है? ऑक्टाहेड्रल, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, रेशियो 1:2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 2:1, तो 6,3. Corundum structure, HCP of anion B6, 6 octahedral void, उसके 2/3 ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो A4B6, A2B3. void में कौन है? कैटायन, वो भी octahedral void में 6, रेशियो 2:3 का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 3:2, 6:4, करेक्ट? Then we have some mixed structures. Another structure we can write down is spinel structure. The representative example for spinel structure is MgAl2O4
In this, Sir? What is the position of OV in HCP? Position, sir, of OVs in वो करेंगे HCP. वो that you do for homework. That I will give today for homework. तो representative example MgAl2O4 anions में का FCC और इसमें अब दो तरीके के कैटायंस हैं, एक मैग्नीशियम और एक एल्यूमिनियम। बेसिकली दो तरीके के कहने का मतलब है देयर विल बी अ डाइवेलेंट कैटायन एंड देयर विल बी अ ट्राइवेलेंट कैटायन। तो जो डाइवेलेंट कैटायन है लेट्स से A2+ एंड वी हैव अ ट्राइवेलेंट कैटायन B3+। तो इसमें लोकेशंस कैसे ऑक्यूपाई होती हैं? द डाइवेलेंट कैटायन ऑक्यूपाइज 1/8 of tetrahedral bonds and trivalent cation occupies half of octahedral bonds। तो यूनिट सेल फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की FCC है तो एक यूनिट सेल में 4 ऑक्सीजन, देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसके 1/8 ऑक्यूपाई किए डाइवेलेंट कैटायन ने, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसके हाफ ऑक्यूपाई हुए हैं, तो 2 Ab2O4। This is the general formula. Can you give me one more example of a molecule which has a spinel structure or which has this type of formula? Ab2O4। तो B3 होना चाहिए ना, B3 होना चाहिए ना सर Na2ZNO2 Na2ZNO AB3 Na2ZNO2 और यहाँ वो कितना है? AB3 होना चाहिए। B3 क्यों होगा? सर हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं FCC में? 4 होता है। सर H2O4 देखो भाई, नहीं एक मिनट, फिर से हम लोग गलतियां कहाँ कर रहे हैं? हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए, एक डाइवेलेंट कैटायन चाहिए और 2 ट्राइवेलेंट कैटायंस चाहिए। सर CaC2O4 is not ionic, कार्बन कैटायन नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है। Fe3O4 Correct. That was the J problem. Fe3O4 Fe3O4 में एक आयरन फेरस है, 2 आयरन फेरिक है। Correct. And that is the actually it is an example of inverse spinel. Inverse spinel में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दिख रहा ना अभी? Inverse spinel सर Ca2O4 नहीं the only example is Sir, A2O4. इनवर्स स्पिनल Fe3O4। इसमें क्या चेंज हो जाता है? द डाइवेलेंट कैटायन occupies 1/4 of octahedral bond, right? And the trivalent cation occupies 1/8 of tetrahedral void plus 1/4 of octahedral void. Correct? That is the inverse spinel structure. ये FCC में ही है, जनरल फॉर्मूला रिमेन्स है Ab2O4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर अब डिस्कस नहीं होगा, यहाँ सेल पैरामीटर्स डिस्कस नहीं होंगे। Clear? And one more structure we need to do that I will write on top. ये हेडिंग्स रब कर ले, हेडिंग्स तो होंगी ना सबके पास। So one more structure we can अरे ये हेडिंग यार, नाम ये ऊपर वाली। हाँ ओके सर, यस। Next structure is perovskite structure. Correct? Representative example is BaTiO3. हाँ,
सर कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा आप बोलेंगे? जब दो कैटायंस होंगे तो वी डू नॉट डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके सर, थैंक यू। कोऑर्डिनेशन नंबर वी ओनली डिफाइन इन बाइनरी कंपाउंड, एक कैटायन एक एनायन। इसमें थोड़ा ध्यान देना, परवस्काइट स्ट्रक्चर BATI होती है, इसमें क्या होता है कोई Sir. हाँ So could you just repeat the non-existence of that cell parameter and CN? नहीं, सेल पैरामीटर जेई में हेक्सागोनल पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो जहाँ जहाँ हेक्सागोनल लैटिसेस आ गई है वहाँ पे तुमसे न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाले हो डेंसिटी कैलकुलेशन के। न्यूमेरिकल्स विल बी ओनली बेस्ड व्हेन यूनिट सेल इज क्यूब। तो इसलिए जहाँ जहाँ मेन क्यूबिक लैटिसेस थी देयर वी हैव रिटन सेल पैरामीटर बिकॉज दिस थिंग वी विल नीड इन अ न्यूमेरिकल। Where we have a HCP lattice, we do not need to know cell parameter. Excuse me sir, sorry to interrupt sir. Exactly किसने है? Sir, and CN? हाँ बोलो। Sir, exactly कितने? फिनाइल में FCC है ना सर? कितने? Just 1 minute. कौन से अपना टाइप? नहीं बस ये लास्ट है, परवस्काइट स्ट्रक्चर इज लास्ट। Okay sir, thank you. हाँ बोलो दादर बैच में से क्या पूछ रहे थे? Sir, and CN? फिनाइल में FCC है। Why is there इट इज no एग्जिस्टेड, parameter? लेकिन इसका उसका कोई यूज नहीं होगा। सो वी डू नॉट डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर हियर बिकॉज देयर आर more than one type of cation, so we do not define coordination number here because it will have no relevance. BATI Sir, why is there no because ये coordination number are used to calculate potential energy or lattice energy of solid. it's a parameter sir I'm asking. पैरामीटर जेई सिलेबस में नहीं है हेक्सागन का। फिनाइल में सर FCC है ना? हाँ तो वहाँ तो तुम देख लो कौन से वॉइड ऑक्यूपाई ऊपर से उठा लो भाई। FCC के लिए क्यूबिक के लिए 3 टाइप के वॉइड हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल। तीनों का तुमने लिख रखा है सेल पैरामीटर। Sir, what is 1/8 of TV? 8 में से कोई Which one एक। will be occupied? 8 में से कौन कोई से एक। लोग? Okay, Parvascite structure. Nobody makes the lattice here alone. It is a mixed lattice. तो कैसा अरेंजमेंट होता है इसमें? क्यूबिक यूनिट सेल है। In a cubic unit cell, देखो बेरियम कैसा कैटायन है? डाइवेलेंट, करेक्ट? So in cubic unit cell, the divalent cation will be present at corners. At all 8 corners there will be a divalent cation. The oxide anion will be present at all face centers. सारे फेसेस के सेंटर पे ऑक्साइड आयन होगा। और टाइटेनियम इज अ टेट्रावेलेंट कैटायन. So the tetravalent cation will be present at body center. Correct? So this is arrangement in Parvascite structure. तो 8 corners पे A होगा, हर एक का contribution 1/8. तो 8 into 1/8, A will become 1. Oxygen is at all face centers, 6 face centers, each contributing half. So 6 into half, 3. Titanium is in body center, so the formula will become AbO3. We can, one way of seeing it would be like this. अगर हम ये मान लें कि बेरियम और ऑक्सीजन दोनों मिलके लैटिस बना रहे हैं, तो क्या क्या चीजें बेरियम और ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर रहे हैं? कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स. So I can say this is a FCC lattice of barium oxide, in which titanium is occupying a octahedral void. अगर FCC lattice मान ले तो body center will become octahedral void, और बेरियम और ऑक्सीजन को मिला के वो FCC lattice बन जाएगी. क्लियर? चलो नोट कर लिया ये सब.
विंडो पे क्या आपने जो 10th वाला था पावर स्लाइड सर वो विजिबल उसका लास्ट पार्ट हम लोग पिकअप में विजिबल नहीं होता तो सर जरा स्क्रीन थोड़ा उनको बोलो ना हाँ पर कर ठीक है सर आपने वो BATIO3 के सर वो स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोला? आई वॉज सेइंग कि अगर देखो इसमें किसी की लैटिस नहीं बोल सकते अकेले। आई वॉज सेइंग अगर इन दोनों को मिला के एक चीज देखे तो आई कैन से दिस टोटल इज अ FCC लैटिस, कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो FCC लैटिस है बेरियम ऑक्साइड की, in which titanium is occupying a octahedral void. Clear? Yes sir. चलो नोट कर लो जल्दी क्विकली। सर हाँ 06 वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से बताओ। 6 वाले में कैटायंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। कैटायंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो कैटायन का तो 6 हो गया। इनका रेशियो 1:2 का है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 2:1 का होगा। तो 6:2। सर सर लास्ट वाले में आपने ऐसा क्यों कहा कि टाइटेनियम विल ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? ऑल नहीं तो बोला बॉडी भाई। सेंटर पे है और ऑल नहीं बोला। अच्छा ठीक। I said one tetrahedral void. I will just show you the diagrams once so that the first basic 5 structures are clear to you. सर पैकिंग फ्रैक्शन के कॉलम में क्या करें? हाँ, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट क्लास में। यस और नो? याद है ना? One example I will do, remaining you should do at home. Just you can see a typical NaCl structure. Correct? Where are sodiums? Where are chlorines? Okay. Clear है ये arrangement अब? You can see at all 8 corners and face centers we have red colored chlorine and anode. H centers and body centers we have fluorescent sodium. इससे coordination number भी जो clearly दिख सकता है तुम्हें 6 वाला। Clear? यस सर Cesium chloride structure. Okay? ठीक है बोलो। एनाइन का 8 कैसे एनाइन का 8 कैसे? एनाइन 8 क्यूब्स में कॉमन होगा ना? जिंक ब्लेंड और फ्लोराइड दोनों देख लो। फ्लोराइड को सारे टेट्राहेड्रल वॉइड देख लो कैसे कहाँ पे होते हैं। ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। जिंक ब्लेंड में देखो केवल ऑल्टरनेट सिर्फ 4 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 आउट ऑफ 8। जिंक ब्लेंड में हाफ ऑफ टीवी ऑक्यूपाई होते हैं ना, आउट ऑफ 8 ओनली 4 आर ऑक्यूपाइड। Here you can see out of 8 all 8 are being occupied फ्लोराइड में। क्लियर है ना? ये कैसे पूछ रहे थे ऑल्टरनेट कैसे ऑक्यूपाई होते हैं। ओके क्लियर है चारों? NaCl टाइप CaCl type, zinc blend and fluoride. सर हाँ सर प्लीज ये जिंक ब्लेंड वाला मत हटाना स्लाइड में। ये
स्लाइड के लिए परेशान मत हो, आई विल सेंड दिस मेल टू एवरी सेंटर, यू कैन टेक दैट प्रिंट आउट, करेक्ट? अभी एक बार देख के वो क्लैरिटी ले लो। Sir, can you show NaCl again? Sir, here it is the opposite, right? Cl should be at the vertices. Cl ही है ना vertices पे, अच्छा उल्टा लिखा है, yes yes, is it wrong? The red ones should be chlorine and the fluorescent ones should be sodium, ठीक है? चलो okay, so now पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। बोलो। जो हेक्सागोनल पैकिंग क्लोजेस्ट पैकिंग हमने पढ़ा था, उसमें और हेक्सागोनल लैटिस सिस्टम में रिलेशन है क्या? अरे उसके लिए देखो, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग जो है ना, उसके 1/3 को ही हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म बोलते हैं, एंड दैट इज अ हेक्सागोनल लैटिस। Now listen, few things which we should first of all address to. पहली चीज डेंसिटी और पैकिंग फ्रैक्शन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल का। लेट्स से NaCl के लिए हम लोग को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है? तो NaCl का यूनिट सेल फॉर्मूला क्या था? A4B4। तो एक यूनिट सेल में 4 सोडियम 4 क्लोरीन, तो पैकिंग फ्रैक्शन आई विल राइट 4 into 4/3 पाई रेडियस ऑफ एनायन क्यूब प्लस 4 into 4/3 पाई रेडियस ऑफ कैटायन क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? दिक्कत याद है? ए क्या था? सेल पैरामीटर क्या था इसका? 2 times radius of cation plus anion. So that if I substitute, तो इसमें 16/3 पाई कॉमन ले ले, r plus cube plus r minus cube, and this will become 8 times r plus r minus का cube, correct? ये तो कैंसिल हो गया। r माइनस क्यूब से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो वी विल गेट 2π/3 1 प्लस रेडियस ऑफ कैटायन बाय एनायन का क्यूब अपॉन 1 प्लस रेडियस ऑफ कैटायन बाय एनायन होल का क्यूब। अब रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन अगर मालूम हो तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम लोग को पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन कब मिलेगा? जब इस पैकिंग का मिनिमम रेडियस रेशियो, क्योंकि तब बिल्कुल सब कुछ कॉन्टैक्ट्स में होंगे ना। NaCl टाइप ऑफ पैकिंग में किस वॉइड में जा रहा था? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मिनिमम रेडियस रेशियो क्या था? ऑक्टाहेड्रल के लिए 414√2 - 1, तो 0.414 अगर इसमें हम रख दें रेडियस रेशियो, तो फॉर मिनिमम रेडियस रेशियो कितना आ जाएगा ये? 2π/3 इंटू, इसको क्या लिखना है हमें? √2 - 1, करेक्ट? और इसको भी √2 - 1, तो ये √2 - 1 रखते ही क्या हो जाएगा? √2 का क्यूब √2 √2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद π/3 1 प्लस 0.414 का क्यूब। क्लियर है? नो डाउट? जनरलाइजेशन समझ में आ रही है?
π/3√2 क्या था? पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC। एनायन FCC बना रहे हैं तो उनकी वजह से π/3√2 आ गया। ये पहली टर्म आ गई। अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे π/3√2 × 1। दूसरी टर्म क्यों आ रही है? ये ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी पैकिंग में भी तुमने अंदर वॉइड्स थोड़े और भर दिए। कौन से वॉइड्स भरे? ऑक्टाहेड्रल। तो उनके रेडियस का रेशियो का क्यूब। क्लियर? So now if I start filling the last column, ये रॉक सॉल्ट के लिए हो गया। सीजियम क्लोराइड के लिए can you tell me what will be similarly? सीजियम क्लोराइड में किसकी पैकिंग थी? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का क्या था पैकिंग फ्रैक्शन? π/6 into 1 plus 0.732 का क्यूब। जिंक ब्लेंड कौन सी लैटिस है? FCC। π/3√2 1 plus टेट्राहेड्रल 225। सर बेटा इधर तो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है ना? हाफ है लेकिन तब भी रेशियो 1:1 हुआ ना। अच्छा। अगले वाले में देखो फ्लोराइड π/3√2 1 प्लस। हाँ वहां पे अब रेशियो 2:1 का है तो 2 × 0.225 का क्यूब। जो चीजें वॉइड में जा रही है वो ट्वाइस है लैटिस बनाने वालों से। अगला एंटी फ्लोराइड से। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट रूटाइल HCP π/3√2 1 प्लस कौन से वॉइड्स में जा रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल लेकिन हाफ। तो 1/2 × 0.414 का क्यूब। नेक्स्ट कॉरेंडम π/3√2 1 प्लस 2/3.414 का क्यूब। Clear? But these all are maximum packing fraction corresponding to minimum radius ratio. हाँ कहाँ पे? जिंक ब्लेंड में हाफ इंटू 2 1 हो गया। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ट्वाइस और उसके हाफ ऑक्यूपाई हो गए। Sir, can you explain the first one? The 1 plus 0.414 का टर्म क्यों आया? एडिशनल टर्म वो। क्योंकि तुमने FCC के लैटिस में और अच्छी पैकिंग कर दी, उसके वॉइड्स में भी कुछ डाल दिया तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ जाएगा ना। So how did you calculate? I did this entire derivation in front of you therefore. Okay, sir. So I didn't get that thing, sir, कि वो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हाफ और 2/3। भाई ज्यादा अगर तुम जितने आइटम से लैटिस बना रहे हो वॉइड भरने वाले उसके ट्वाइस रख रहे हो तो उनका ट्वाइस नंबर। अगर यहाँ 8 कैटायंस होते तो यहाँ एक 8 आ जाता ना। तो जब 4 कॉमन लेते तो 8 सर समझ आ गया। जाता ना। हाँ थैंक यू सर। Cell parameters in every different, right? हाँ देखो सेल पैरामीटर हर एक लिए डिफरेंट आएगा लेकिन उसका न्यूमरेटर भी उस हिसाब से डिफरेंट आएगा ना। यू कैन डू फॉर एनी नाउ like I have done for NaCl complete. You can try for any of them and you will eventually end up in the same result. कॉरेंडम का वापस समझा सकते हैं सर? रूटाइल और कॉरेंडम का सेम चीज की है। रूटाइल और कॉरेंडम में HCP का पहले π/3√2 फिर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस टू एनायंस इनटू रेडियस रेशियो कर दी। रूटाइल में नंबर ऑफ कैटायंस पर हाफ ऑफ नंबर ऑफ एनायंस। कॉरेंडम में दे वर 2/3। ओके सर।
Now in any crystalline solid, one thing we can always see कि जो एक यूनिट सेल की डेंसिटी हो, that will be density of entire solid. हाँ. तो फ्लोराइड में हमने CaF2 का एक 2 कंसीडर किया और टेट्राहेड्रल वॉइस ट्वाइस ऑफ Z इफेक्टिव वो 2 लिया तो 4 नहीं आया मतलब. यार CaF2 का 2 इसीलिए आता था ना कि टेट्राहेड्रल वॉइस 2 है, ट्वाइस है. तो CaF2 में F2 है उससे फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं. ओके. सो जो एक यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही इंटायर सॉलिड की डेंसिटी होगी, करेक्ट. और एक यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं? एक यूनिट सेल का मास कैसे लिखेंगे? Z effective. It can be effective number of atoms, its total ions, correct, into atomic weight by Avogadro's number upon volume of unit cell. Clear? So by this we can calculate density. आयनिक सॉलिड के लिए लिख रहे हो तो Z इफेक्टिव क्या लिखोगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, और फिर एक ही जगह वहां क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट. या ऐसे लिख सकते हो इफेक्टिव नंबर ऑफ कैटायंस इनटू एटॉमिक वेट ऑफ कैटायन बाय एवोगाड्रो नंबर प्लस इफेक्टिव नंबर ऑफ एनायंस इनटू एटॉमिक वेट ऑफ एनायन बाय एवोगाड्रो. क्लियर? Clear है ये? So by this you will simply calculate density of any ionic solid. You have booklet, all of you? Yes, sir. तो देखिए प्रॉब्लम अभी अटेम्प्ट करो जरा. Page 35 on booklet, problem 30. Attempt this problem. Page 35, problem 30. हाँ. आयनिक सॉलिड्स के लिए इसको ऐसे लिख लेना डेंसिटी वाले फॉर्मूले को. Z इफेक्टिव ऑफ कैटायंस इनटू एटॉमिक वेट ऑफ कैटायन बाय एवोगाड्रो नंबर प्लस Z इफेक्टिव ऑफ एनायन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ एनायन बाय एवोगाड्रो नंबर होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो एक ये प्रॉब्लम करो जल्दी.
जो खाली जगह है साइड्स के बीच की वॉइड क्या होता है? खाली जगह बस वही है। Okay. So BCC lattice है. Sir, can you give us 2 minutes? क्या अभी तक हुआ नहीं? No, sir, no. All voids will be कितना वर्ड बॉडी के साइड में एक सेल में कॉलम पे Sir, is it square root of 2
minus 1 into पैकिंग फ्रैक्शन बता देखो पीछे से आंसर चेक करो। लो देखते हैं अभी आइटम्स कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है और बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर वाला आइटम ऑल 8 कॉर्नर्स को टच करना है, करेक्ट। तो वॉइड्स कहाँ है, ये एक वॉइड। यहाँ पे कितने रेडियस का मैक्सिमम एटम फिल कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ? a माइनस 2r। तो इतने डिस्टेंस में मैक्सिमम किस रेडियस का एटम फिल कर सकते हैं, बाय 2। और बॉडी सेंटर क्यूबिक में ये सेंटर वाला इस कॉर्नर वाले को टच कर रहा है, तो a और r में रिलेशन क्या था, इफ यू रिमेम्बर, 3a इज इक्वल टू 4r, करेक्ट। तो r कितना या a कितना आ जाएगा यहाँ से, 4/√3 आ दैट इफ वी सब्स्टिट्यूट क्या मिल जाएगा, 2r/√3 minus r. This is the radius of impurity atom you can substitute. Sir, हाँ, why only faces yes. Wait. can also be a void? Wait. It can तो ये तो हुआ अगर ये x सेंटर वाला void देखा। दूसरी एक खाली जगह कहाँ पड़ी हुई है इसमें, ये फेस सेंटर, करेक्ट। यहाँ पे मैक्सिमम किस रेडियस का एटम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी एटम का रेडियस। हर कॉर्नर पे एटम है और यहाँ बीच में कर लिया है, क्या होगा, √2a minus 2r. Here it will be a minus 2r by 2. भाई आप ये डिस्टेंस क्यों देख रहे हो, इसके ऊपर भी क्यूब है ना, उसके भी सेंटर में ये, इस डायरेक्शन से देखो ना, ये छोटी जगह है, this will be the smaller distance. करेक्ट, तुमने इससे देख लिया तो इन दोनों को डिस्टॉर्ट होना पड़ जाएगा, करेक्ट। तो बॉडी सेंटर से भी एग्जैक्टली सेम चीज है जो एच सेंटर से है। सो द मैक्सिमम रेडियस ऑफ इम्प्योरिटी एटम which we want to substitute can be 2r/√3 minus r. Here, whether I substitute it as face center or I substitute it as S center. सर आंसर में 4r/√3 minus 2r दिया, इसका डबल दिया, इसका डबल डायमीटर दिया हो नहीं, रेडियस ही पूछा, रेडियस साइज चाहिए होगा, साइज मैक्सिमम साइज पूछा है ना, साइज का मतलब डायमीटर होता है। हाँ, यार फेस सेंटर पे ऐसा एक फेस है, देखो इसके चारों कॉर्नर्स पे एटम्स है, तुम्हें बीच में एक रखना है, ऐसे ऊपर भी एटम है पीछे भी है, तो उस डायरेक्शन से डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस है √2a minus 2r, और इस डायरेक्शन से डिस्टेंस है a minus 2r। अब जो यहाँ तुम रखोगे वो तो एक स्फीयर है और तुम्हें किसी चीज को डिस्टॉर्ट नहीं करना है, तो तुम तो सबसे छोटे वाले डिस्टेंस में फिटिंग देखोगे ना, तो इस पे नहीं देखना है, किस डिस्टेंस से देखना वो पड़ेगा, a minus 2r से देखना पड़ेगा। So can you explain first part कैसे करेंगे, as in how did you obtain that? This distance is a, this distance is a, तो this distance between, यहाँ पे हम लोग कोई भी इम्प्योरिटी एटम फिट कर सकते हैं, will be a minus 2r। और ये रिलेशन तो फर्स्ट क्लास में डिराइव किया था बीसीसी के लिए। हाँ, got it.